वाईएसआर कड़पा जिले से खबर है। जमल्ला मरगू असेंबली हल्के में वाईसीपी की तरफ से दस्तखती मुहिम चलाई गई। मेडिकल कॉलेजों को खानगी शोबे के हवाले करने के खिलाफ बतौर एहतजाज अवाम से दस्तखत वसूल किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम रियासती हज कमेटी के साबिक चेयरमैन BS गौसुल आजम की क़यादत में मुनक़िद हुआ। जमल मरगू में इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पतालों के प्राइवेट गरीब पसमानदा और अक़लियती तलबा आला तालीम से महरूम हो जाएंगे। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధిష్టానం పిలుపు మేరకు అలాగే మన ప్రియతమ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు 18వ వార్డు గడ్డవీధి జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోని 18వ వార్డులో కోటి సంతకాల సేకరణలో భాగంగా ఈరోజు స్థానిక ఈ వార్డు కౌన్సిలరు మరియు 18వ వార్డు కౌన్సిలర్ ఇన్ఛార్జ్ షామీరు, కోఆప్షన్ నెంబర్ ఫయాజు, మిగతా వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం వచ్చిన తర్వాత PPP పద్ధతి ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ కళాశాలలను ప్రైవేటీకరణ చేయడం జరుగుతుంది। ఇది तमिलनाडु के जिले क्रोन में भगदड़ वाक़े की तहकीकात CBI के हवाले की जा रही है। टीवी के पार्टी के सरबराह विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के ताल्लुक से आज फैसला सुनाया। CBI तहकीकात की निगरानी एक कमेटी करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय रस्तोगी और 2 IPS अफसरान शामिल होंगे। अदालत ने इस मामले में दायर चंद अर्जियों पर बरहमी जाहिर की, क्योंकि बाज दरख्वास्त गुजारों ने दावा किया कि उनके नाम पर दरख्वास्तें उनकी मर्जी के बगैर दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमिलनाडु के हुक्मरान DMK ने कहा कि अदालत के हुक्म के मुताबिक रियासती हुकूमत CBI इंक्वायरी पर अमल करेगी। इधर AIADM और BJP ने इस फैसले का खैर मकदम किया। Basis of a petition filed by one Dinesh, that to Madras High Court. The High Court itself nominated a special investigation team. It constituted a special investigation team to be headed by one Mr. Ashra Garg, who is a very famous officer. He is also from CBI. He was there in CBI for so many years, and he has come now to Tamil Nadu. And state had no option than to accept it, so we accepted it. Cases relating to more than more than one state is involved. For a single state involvement, only the state police will investigate. I don't know why the CBI is being called to investigate this case, but it is a court order. We cannot say anything on that. More than 41 people dying there in Karur, and after then the DMK government wanted to put the blame, shift the blame on others, particularly the TVK, and also the comments by the DMK and its alliance parties about the BJP. All these things have the Supreme Court has answered. It is definitely a slap on the this DMK's government's face. Welcome the decision. This clearly exposes the flaws and the incompetence of this DMK government, which led to the loss of 41 precious lives. And we hope that finally those families of those victims will be delivered justice. It is this DMK government which repeatedly erred in the way they had handled this entire episode and issue. First it was one women commission, then they sought some directions from the court, then an SIT was formed, and the bureaucrats did a media trial by releasing videos. It was very clear and evident that DMK is trying to hide something big, and they are so scared, and the way they handled this issue was evident. कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने वजीर आला सिद्धारामैया को मकतूब लिखकर हुकूमत की मिल्कियत वाली इमारतों, स्कूलों और पार्कों में RSS की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने की अपील की है। खड़गे ने खत में इल्जाम लगाया कि RSS बगैर पुलिस इजाजत के डंडों के साथ जारिहाना मुजाहिरे कर रही है, जिससे नौजवानों के जहनों पर
मुनफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ये सरगर्मियां आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है और बच्चों और अवामी मफाद में फौरी तौर पर ऐसी तमाम सरगर्मियों पर रोक लगानी जानी चाहिए। I have requested the CM in writing that RSS activities should not be allowed in government schools and colleges, government aided schools and colleges, government grounds, public places at all. And more importantly, these activities that RSS does is literally brainwashing young minds, which is not helping the nation, nor is it helping the society in any way. So, कर्नाटक में बीजेपी लीडरों ने आरएसएस पर पाबंदी के मुताले पर तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बेलगावी में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदीश शेट्टर ने वजीर प्रियंक खड़गे की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर तनकीद कांग्रेस की फितरत है। कर्नाटक बीजेपी के सदर ने इल्जाम लगाया कि खड़गे अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की खातिर सियासी तशहीर का सहारा ले रहे हैं। Congress mentality is always to criticize the RSS, and because of RSS, Hindu communities in the entire nation, Hindu community is united. So if Hindu community is divided, it will be advantage for the Congress. So always they are criticizing RSS. Now the Priyanka Kharge statement, if we see, I condemn it, and he is insisting for the बैनिंग ऑफ द आरएसएस। इट इज नॉट इन द बेंगलुरु में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कर्नाटक के वजीर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि आरएसएस खुद को सखावती तंजीम कहती है, लेकिन हकीकत में वो एक सियासी तंजीम है। उनका सवाल है कि ऐसी सियासी तंजीम को सरकारी सहूलतों के इस्तेमाल की इजाजत कैसे दी जा सकती है। Taken, I think would be a correct thing, because RSS is a political outfit. They may say that we are a cultural outfit, but politics is there in their entire working, and they are involved in politics. They are involved in so many things that happen in this country, and so how can any political outfit be allowed usage of government facilities? Not only for the RSS, for whether it's RSS, whether it is Congress, whether it is any political party or anyone who's involved in politics, they should not use government facilities. Very simple. So I don't think RSS should. दिल्ली में आरएसएस से वाबस्ता एक शख्स की मुबैना खुदकुशी के बाद सियासी हलचल मच गई है। इस वाक़े पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इल्जाम आयद किया कि आरएसएस के अंदर नौउम्र लड़कों के साथ जिनसी हरासानी के वाक़यात हो रहे हैं और आरएसएस को इस मामले पर फौरी वजाहत देनी चाहिए। That suicide note is very clear. I think you people also got information for the suicide note. The suicide note is very clear that RSS is doing sexual harassment to the boys, those who are in a very child age also. Therefore, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के वेलफेयर हॉस्टल्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और मुताल्लिका हुक्काम के सख्त एहतसाब पर जोर दिया। सीएम रेवंत ने हॉस्टल्स के मामलात में टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात नाफिज करने की हिदायत दी। इस इजलास में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर अडलोरी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली थे। उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव और बीसी, एससी, एसटी और अक़लियत के साथ साथ माजूर तलबा के शोबेजात के आला हुक्काम भी इस मौके पर शरीक थे। वज़ीर आला ने हॉस्टल्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की हिदायत दी। विजयवाड़ा में पीर के रोज
के.एस. विश्वनाथन ने आंध्र प्रदेश के इत्तलात व ताल्लुकात आमा शुबा के डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। इससे कबल विश्वनाथन विशाखा मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर के तौर पर फाइज थे। विश्वनाथन साबिक में अनंतपुर के असिस्टेंट कलेक्टर, नरसापुर सब कलेक्टर, प्रकाशम और विशाखापट्टनम जिलों में ज्वाइंट कलेक्टर रह चुके हैं। इत्तलात व ताल्लुकात आमा शुबा के आला हुक्काम और अमले ने विश्वनाथन के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्हें खुश आमदीद कहा। अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद नए डायरेक्टर ने शोबे के सरगर्मियों और जारी मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। रियासत कर्नाटक के तारीखी जिला हावेरी से दिलचस्प खबर है। यहाँ सोनोर टाउन में 2000 साल पुराना इमली के दरख्त है। सोनोर के दोड़ा होनसे कुल मठ में वाक़ ये दरख्त मुकामी रिवायत के मुताबिक नवाबों के दौरे हुकूमत में जुनूबी अफ्रीका से लाकर यहाँ लगाए गए थे। इनमें से एक दरख्त की चौड़ाई 13 मीटर से ज्यादा है और ऊंचाई तकरीबन 17 मीटर है। मठ के स्वामी जी ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि इस दरख्त के फल आम इमली से मुख्तलिफ होते हैं, नारियल की शक्ल के मगर जायके में खट्टे। उनके मुताबिक यह दरख्त कुदरती फ्रीजर की तरह काम करता है। इसके नीचे रखा हुआ खाना या मुर्दा जिस्म खराब नहीं होता। इस नायाब दरख्त को देखने के लिए मुल्क और बैनुल मुल्क से ज़ारईन पहुंचते हैं। हिंदू, मुस्लिम और दिगर मज़ाहिब के लोग कौमी एकजहती के जज्बे के साथ इकट्ठे होकर इस कुदरती अजूबे का नज़ारा करते हैं। जनूबी भारत में मौसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेशों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया। जनूबी मगरिब मानसून मुल्क के कुछ वस्ती और मशरकी हिस्सों से पीछे हट रहा है, जबकि जनूबी रियासतों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। आपको रखे बाखबर